Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss order clause for class 12th IT students from the topic SQL queries, and this topic is from the unit database concepts. So let's see what is order clause. Order clause is used to sort result of a query based on some attributes. So if you want to sort the result of a query based on some column, then we will use order by clause. So how we use it, what is the syntax of that? First we write select, then column 1, column 2, column n, whatever columns we have to display as a result, then from, then table name, then whatever condition we want to put. So इससे क्या होगा, एक रिज़ल्ट आ जाएगा और उस रिज़ल्ट को अगर हमें सॉर्टिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है देन वी राइट ऑर्डर बाय, और जिस कॉलम के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है वी राइट दैट कॉलम एंड देन वी मेंशन वेदर वी वांट टू सॉर्ट इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग. तो ये जो असेंडिंग होता है दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट. तो असेंडिंग आप नहीं भी लिखोगे तब भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में आएगा व्हेन यू आर गोइंग टू जस्ट मेंशन ऑर्डर बाय एंड एट्रीब्यूट नेम. तो अगर आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं मेंशन किया है, ASC इज़ यूज्ड फॉर असेंडिंग ऑर्डर एंड DESC इज़ यूज्ड फॉर डिसेंडिंग. सो इफ़ यू हैव नॉट मेंशन ASC तो बाय डिफ़ॉल्ट भी ASC ही लेगा, आपका डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होगा. बट इफ़ you want to arrange it in descending order, you want to display the result in descending order, then you have to mention DESC. So for example, if I am going to write a query that is select, then teacher name, same column name I have to write, so select teacher name and then from teacher. So what will happen in this case? You will get a result in the form of table where column heading will be teacher name and then all the result will be displayed as it is. All the tuples will be displayed as it is, like Tushar will come first, then second tuple will be Anamika, then Aradhya. So it is not sorted. Now if you want that it should be sorted in alphabetical order, then you have to mention here order by which column or using which column we have to sort it, using teacher name. So we will write here teacher name. So now its output will be teacher name will be column heading at the top and then first Ajay, then Anamika, Aradhya, then Brijesh. In this way it will come. So by default it will take ascending because I have not written here ASC or DESC. So by default it will arrange it in a A to Z way. और अगर मुझे descending करना है like Z to A, then I have to mention here DESC. So these are the keywords which are used for arranging data in ascending or descending order. Now let's see the questions. Let's see the queries for based on this table, that is teacher table, in which teacher name is given, salary is given and department of the teachers are given. Display teacher's name. We have to display teacher's name and their salary. We have to display teacher name and salary attribute in ascending order of salary. So we have to display both these columns, बट वी हैव टू अरेंज, वी हैव टू सॉर्ट दैम इन ऑर्डर ऑफ सैलरी. तो हमें किसके अकॉर्डिंग उसे असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, अकॉर्डिंग टू द सैलरी. सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस क्वेरी? फर्स्ट वी विल राइट सेलेक्ट, देन वी विल राइट टीचर नेम बिकॉज वी हैव टू डिस्प्ले दैम. सो वी विल राइट टीचर नेम कॉमा सैलरी, then we write from, then table name is teacher. So we are not having any condition, तो यहाँ पे हमारा where clause नहीं यूज़ होगा. तो जब condition होती है then only you use where clause, otherwise no need to use where clause. This is optional. Now we have to arrange them in ascending order, so we will just write order by salary. तो असेंडिंग ऑर्डर है, आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और आप मेंशन भी कर सकते हो, इट इज़ ऑप्शनल. तो अगर आप विदाउट ASC लिखोगे तब भी एक क्वेरी सही होगी और ASC के साथ लिखोगे तब भी एक क्वेरी सही होगी. नेक्स्ट इज डिस्प्ले नेम ऑफ टीचर्स हैविंग सैलरी लेस देन 50,000 इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ पे कंडीशन आ गई है कि आपको नेम ऑफ टीचर्स डिस्प्ले करने हैं जिनकी सैलरी लेस देन 50,000 है, और वो जो नेम है वो एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स Z to A.
क्योंकि हमें नेम ऑफ टीचर्स डिस्प्ले करने, सो इट मीन्स वी हैव टू डिस्प्ले दैम इन alphabetical order, that is Z to A. So how we will write? We have to display teacher's name, so we'll write select teacher name from table name is teacher, so we'll write teacher. Now condition, order by is always mentioned after where clause. So first you have to mention the condition, salary is less than 50,000, so you will write salary less than 50,000, and then you will use order by an attribute name, that is teacher name. आपको टीचर नेम को ही डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, सो ऑर्डर बाय टीचर नेम, एंड देन यू विल मेंशन हियर DESC. नाउ वी शुड सी द आउटपुट ऑल्सो. अगर आपको क्वेरी दी है क्वेश्चन में और आपसे आउटपुट पूछा है, दैट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस. सो इफ इट इज़ रिटन सेलेक्ट टीचर नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम टीचर ऑर्डर बाय असेंडिंग, सैलरी असेंडिंग, तो सैलरी को पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे. सो आई विल राइट द आउटपुट हियर. फर्स्ट आई एम गोइंग टू इरेज दिस. सो व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फर्स्ट क्वेरी, select teacher name. So 2 columns will be created here, teacher name and another is salary. Now we have to sort it according to salary. So first salary is, smallest number in salary is 40,000, so we will write 40,000. After that there are 245,000 values, so we will write 45,000. After that 50,000, two 50,000s are there, two teachers are having 50,000 salary. Then 70,000, so again 2 teachers are having 70,000. Now we will write their name, those who are having 40,000. तो सबसे पहले जो टपल होगा जिसकी 40,000 वैल्यू है सबसे ऊपर वही आ जाएगा, ब्रिजेश. देन सेकेंड 40,000 वन इज़ मीना. देन 45,000 किसकी है सबसे पहले, अजय. देन नेक्स्ट इज़ अमित. 50,000 अनामिका एंड देन आराध्या. एंड देन 70,000 में जो है वो है तुषार. सो देर आर 2 persons having 70,000 and another is Priyanka. So see, salary is sorted and these are arranged according to it. अगर हमें चाहिए कि हमारे ये जो नेम्स है ये भी सॉर्टेड हो, तो नेम्स कैसे सॉर्टेड होंगे? इट मीन्स इफ़ यू वांट टू सॉर्ट द रिजल्ट बेस्ड ऑन 2 कॉलम्स, ओके, सैलरी एंड टीचर नेम एज वेल. तो उस केस में क्या होता है, आई हैव टू मेंशन हेयर कि अगर मुझे 2 कॉलम में सॉर्टिंग करनी है तो हम 2 कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. सो फॉर दैट आई हैव टू जस्ट मेंशन हेयर कॉमा एंड देन टीचर नेम एंड देन असेंडिंग. और असेंडिंग तो ऑप्शनल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ असेंडिंग ओनली, बट आई हैव मेंशनड हियर. तो उस केस में क्या होगा, फिर ये जो सेम वैल्यू वाले 2 हैं जो 40,000 वाले जिनकी ये सैलरी सेम है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे. तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग में है. देन यहाँ पे 45,000 है, दिस इज़ ऑल्सो असेंडिंग. अनामिका आराध्या भी पहले से असेंडिंग में, बट दिस तुषार और प्रियंका इज़ नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमने दोनों कॉलम में सॉर्टिंग की है अकॉर्डिंग टू असेंडिंग, तो ऊपर प्रियंका आएगा एंड नेक्स्ट वाले रिकॉर्ड में तुषार आएगा. सो आई होप इतना कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि हमें कैसे आउटपुट फाइंड करना है क्वेरीज का. नाउ वी विल सी द आउटपुट फॉर दिस क्वेरी. टीचर नेम, ओनली टीचर नेम विल बी डिस्प्लेड वेयर सैलरी इज़ लेस देन 50,000. तो 50,000 से लेस सैलरी वाले कौन हैं, 40,000, 45,000, 40,000, 45,000. तो आपके सिंपल जो रिकॉर्ड्स हैं वो आएंगे मीना, ब्रिजेश, अमित एंड देन अजय. ये चारों टपल्स आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं और ये चारों जो हैं आपके 50,000 से लेस भी हैं. तो ये चारों मिलके आपका रिजल्ट सेट बनाएंगे. नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम CBSE सैम्पल पेपर. दिस MCQ इज़ गिवन. तो मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि जो भी CBSE सैम्पल पेपर में क्वेरीज है वो बहुत टफ है, सो प्लीज़ डिस्कस दैम ऑल्सो.
So this question is from CBSE sample paper which is based on order by. तो आई होप कि अब आपको ऑर्डर बाय क्लियर हो गया होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हो. कंसिडर अ टेबल कोचिंग हैविंग फील्ड्स सिटी नेम. तो एक टेबल है कोचिंग जिसके फील्ड हैं, कॉलम्स हैं, सिटी नेम एंड एनरोलमेंट. शिखर वॉन्ट्स टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ द अबव टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनरोलमेंट्स. तो एनरोलमेंट्स एक कॉलम है जिसके अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में हमें डेटा को सॉर्ट करना है. सो यहाँ पे ऑर्डर बाय क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर बाय एनरोलमेंट्स. और हमारा सेलेक्ट क्या क्या होना है, येस ही वांट्स टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ अबव टेबल. तो यानी कि पूरा डेटा लेना है. सो वी कैन यूज़ एस्ट्रिक. और यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस में आपका एस्ट्रिक यूज़ हुआ है बिकॉज वी हैव टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स. सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, देन टेबल नेम कोचिंग इज रिटन हियर. ऑर्डर बाय बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है तो वेयर विल नॉट बी यूज, डायरेक्टली ऑर्डर बाय विल बी यूज. And then name of the column, enrollments, and then here we have to arrange them in ascending order. तो यहाँ पे आ गया आपका ASC कीवर्ड, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है. नाउ DESC, तो ये तो डिक्रीजिंग के लिए होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोचिंग ऑर्डर बाय एनरोलमेंट्स. सो दिस इज़ करेक्ट क्योंकि यहाँ पे ASC या DESC मेंशन नहीं हुआ है, तो वी नो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका ASC होगा. बाय डिफ़ॉल्ट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में से मेंशन करेगा. नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोचिंग ऑर्डर बाय एनरोलमेंट्स असेंडिंग. तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ASC कीवर्ड होता है, असेंडिंग कीवर्ड नहीं होता है. सो दिस वन इज़ रॉन्ग. सो विच कमांड्स आर करेक्ट, विच क्वेरीज आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड. एक्चुअली इट शुड बी थर्ड हियर. सो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट. सो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो इन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए, तो आपकी ईजीली क्वेरी जो है सॉल्व हो जाएगी. सो आई होप ये ऑर्डर बाय आपको क्लियर हो गया होगा और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. दिस मच इन दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एग्रीगेट फंक्शंस, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है आपका CBSE सैम्पल पेपर में, एंड आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. सो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है अच्छे से, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और कमेंट में बताइएगा कि इफ़ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट देन यू कैन टेल इन कमेंट बॉक्स. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.